very much addict to the dump walk and saying Jai Bhim. And they are using smoking every day and saying Jai Bhim. Okay, your family is not a problem for you. Your own God is a problem for you. This mission started from the Namdev ji, Guru Namdev ji. Still now we are carrying that his mission. When we will fulfill Guru Namdev's mission, Kabir's mission, Ravidas' mission, Begumpura mission. Today onwards, I want to call the chamchas as a saloon slaves. It is a great pleasure and honor to meet you all today. हमें आप सबसे मिलके सम्मान और बहुत गर्व महसूस हो रहा है. Today is the blessed day for you and me. We are all here. आज हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि आज हम सब एक साथ बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं. Earlier, we had decided to conduct a meeting at Halukeda, but due to the rulers, BJP rulers, and as well as local administration, they never tolerated to conduct our meeting, our Baba Saheb Ambedkar's birth anniversary. They never tolerated and they not given a permission to conduct our program in that village. तो पहले जो आज का कार्यक्रम है वो तराना विधानसभा के हालूखेड़ी गांव में निर्धारित था, लेकिन यहाँ के जो सरकारी लोग हैं, जो यहाँ का प्रशासन है और जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, उनकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर परमिशन नहीं मिल पाई. वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हो, इसलिए वहाँ का कार्यक्रम पोस्टपोन करके आप लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए. We are a student of Kanshiram. Kanshiram students never go behind. Always they go forward only. So that's what immediately our Suryavamsi arranged another program at Itawa village. Now we are celebrating Baba Saheb Ambedkar birth anniversary here. तो चूंकि हम सब कांसीराम साहब के शिष्य हैं और कांसीराम साहब ने हमें सिखाया है कि किसी भी स्थिति में हमें पांव पीछे नहीं खींचना, तो चूंकि वहाँ प्रशासन और सरकार के षड्यंत्र के बावजूद वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसलिए हमारे किशन सूर्यवंशी जी ने यहाँ बात करके आप लोगों को इकट्ठा किया. तो आज हम आप लोगों के बीच यहाँ इटावा गांव में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा है. I am coming from the land of Periyar. But today we are conducting the meeting here. It is a very big message and a very big slap to the face of BJP government of this land. तो मैं देश के अंतिम सिरे तमिलनाडु से आके आज देश का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूँ. और ये भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणवादी तत्वों को एक बड़ा करारा तमाचा है. That is the guts of Periyar. और ये हौसला जो है वो पेरियार का है. You have to also learn the lesson from Periyar and Kanshiram. तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी मानवर कांसीराम साहब और पेरियार से ये सबक सीखना चाहिए. Though icons are the Kadarnath to the BJP and RSS and Congress. तो हमारे ये जो दो महापुरुष हैं पेरियार और कांसीराम,
ये बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक लोग हैं। But I am seeing, I am roaming throughout the country. I am watching the Ambedkarists, the so-called Ambedkarists. They lost their credibility. They lost their values. They are lost their virtues. They lost their confidence also. Because whoever saying Jebim, they are all went behind the Manuwadi parties, or otherwise they are all working like a gundagaris to the Manuwadi gundas. तो आज मैं देखता हूं, मैं पूरे देश में घूमता हूं और मैं देखता हूं तथाकथित अंबेडकरवादियों को, जिन्होंने आज अपनी विश्वसनीयता खोई है, ईमानदारी खो दी है और जो सत्ताधारी दल है उनके पीछे पीछे घूमने का काम करते हैं। इसलिए इन्होंने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संघर्ष था उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको कुंद करने का काम किया। This is a very dangerous to the so-called Dalit people of this country. ये जो तथाकथित दलित है इस देश के, उनके लिए ये स्थिति सबसे खतरनाक। Wherever I went, the people are saying that Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. But their character, when I watched their character, I couldn't learn a single lesson from a person who is saying the Jai Bhim. I actually still now I didn't learn any lesson from, good lesson from those people. तो मैं जब पूरे देश भर में देखता हूं और जो ये जय भीम जय भीम जय भीम करते घूमते हैं, मैंने इनमें से एक आदमी को ऐसा नहीं देखा जिससे मैं कुछ सबक सीख सकूं। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। They are very much addicted to the Dampak and saying Jai Bhim. And they are using smoking every day and saying Jai Bhim. Most of the people are queue in the bar and as well as liquor shop. They are also, when they buy the liquor from the dukan, they are also saying that Jai Bhim and they are buying the liquor. तो मैं What education, what ethics our people are having. तो मैं जब देखता हूं इन तथाकथित अंबेडकरवादियों को, तो ये हाथ में तंबाकू मल रहे होते हैं और जय भीम करते रहते हैं, सिगरेट फूंक रहे होते हैं और जय भीम का नारा लगाते रहते हैं, दारू की लाइन में खड़े होकर दारू की बोतल ले रहे होते हैं और जय भीम भी करते रहते हैं। तो ऐसे तथाकथित अंबेडकरवादियों से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या इनसे सीख सकते हैं? You tell me what lesson I will learn from you. तो आप ही बताइए कि इस तरीके के लोगों से हम क्या सबक सीखें? Tell me. I want to learn something from you. I came from the 3,000 kilometers away from this land. I want to learn something from you. Why our people are living like a slave? Why our people are living like a worse than animal? The reason is not a Brahminical people. The reasons are from our own people. मैं 3,000 किलोमीटर से चल के आप लोगों के बीच में आया। अब जब हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ दारू पी के लोग धुत हैं, बीड़ी सिगरेट फूंक रहे हैं, तो आप लोगों से मैं क्या शिक्षा लेके जाऊं? और जब मैं ये आपकी ये आदतें देखता हूं तो हमें एहसास होता है कि आप 2000 साल से गुलाम क्यों हैं।
आपकी इन आदतों की वजह से आप गुलाम हैं। ब्राह्मणों को आप झूठा दोष देते हैं, अपनी नपुंसकता, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, जबकि असली कमी आपके अंदर है। Your people are very much satisfying to keep a Baba Saheb Ambedkar Murti in your village. And you are very much satisfied that you are keeping a Baba Saheb Ambedkar photo in your home and getting a satisfied. But I never see any doctor in that village. I never see any good lawyers in this district. I am not seeing any judges. I am not seeing any pilot. I am not seeing any good engineers. Then what is the use of saying Jai Bhim? And you are not eligible to say praise Baba Saheb Ambedkar also. तो आप लोग अपने गांव के चौराहे में बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हैं, अपने घरों में बाबा साहब की फोटोज लगाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके पास ना तो एक डॉक्टर है, न एक अच्छा वकील है, न जज है, न पायलट है। तो आपके जय भीम करने का क्या मतलब रह जाता है? जब आपने भीम का अनुसरण ही नहीं किया तो फिर जय भीम करने का क्या मतलब रह जाता? During Kanshiram period, Kanshiram ji told, "Vote हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा." That slogan, if you say that slogan, something will happen. Now you people forget about that slogan. Your vote is not for yours. You are putting your vote for your enemy. Your vote is for BJP and Congress, and they are coming to the power. But another side, wherever you go, Jai Bhim. You forget Kanshiram. That's what you are facing. A lot of atrocity, violence, humiliation, everything is happening because you fail to respect, you fail to learn मान्यवर कांशीराम जी. तो बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम जी आए और उन्होंने समाज को ये बताने का काम किया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। राज किनका? ब्राह्मणवादी ताकतों का, कांग्रेस का, भाजपा का, आरएसएस का। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ आप जय भीम भी करते रहते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरएसएस के लोगों को जिता के राज भी सौंप देते हैं। तो जो कुछ आपके जीवन में बदलाव आना था वो भी, उसके चांसेस भी खत्म हो गए। और यही कारण है कि आज भी आप जगह जगह, मैं देखता हूं रोज आए दिन, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी को अपमानित किया जा रहा है। आपके समाज के साथ हर दिन 10, 20, 50 घटनाएं होती रहती हैं। I sincerely express my thanks to the tribal leader Solanki. When I landed at Madhya Pradesh, Indore airport, he welcomed us. मैं आदिवासी नेता हमारे बीच में मिस्टर लाल सिंह सोलंकी जी हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं इंदौर एयरपोर्ट में उतरा तो अकेला आदमी था जिन्होंने हमारे लिए आके हमसे मिले, हमारा स्वागत किया। You are all my brothers and sisters. Why I am saying you are brother to me means the word meaning brother is somewhat beyond comrades. तो मैं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको भाई और बहनों के नाम से संबोधित क्यों कर रहा हूं?
जो ब्रदर है, ब्रदर का अर्थ होता है कॉमरेड, जो है उसके ऊपर का अर्थ होता है। Brother means your blood and my blood are the same. तो जब हम किसी को भाई कहते हैं, भाई का मतलब होता है आपका खून हमारा खून एक है, समान है। It expresses the bonding relationship. ये हमें एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है। Whatever your blood is fighting for self-respect. तो Around 3,000 kilometers away from this land, I am from Kanyakumari. My blood is also fighting for the self-respect and dignity. When you go 3,000 kilometers, because Madhya Pradesh is the center of this country. When we go another 3,000 kilometers away from here to Jammu Kashmir, there also our people are there. They are also fighting for. They are also our brother. They are also fighting for the same spirit, the same struggle, self-respect and dignity. तो मैं क्यों कहता हूं कि हमारा खून का रिश्ता है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 3,000 किलोमीटर दूर से आया हूं। वहां भी हम आत्मसम्मान और मानव गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश देश का सेंटर है, यहां भी आप आत्मसम्मान और मानव गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप यहां से 3,000 किलोमीटर उत्तर चले जाइए, कश्मीर, वहां भी हमारे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और मानव गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा संघर्ष एक है, इसलिए हम समान हैं। हमारे अंदर एक समान स्पिरिट है। You see, Baba Saheb Ambedkar, Manevar Kanshiram, Tandai Periyar, Chhatrapati Sahuji Maharaja, Narayana Guru, Birsa Munda, Captain Jebal Munda. Why they fought for us? They fought for equality. They fought for brotherhood. They fought for our freedom. They fought for our justice. तो आप देखते हैं कि पेरियार, नारायणा गुरु, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, तांत्या मामा, तांत्या भील, मानवर कांसीराम साहब, इन्होंने अपने अपने समय में संघर्ष किया। इन्होंने संघर्ष क्यों किया? इन्होंने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि हमारे समाज को समानता मिल सके, हमारे समाज को स्वतंत्रता प्राप्त हो, हमारे समाज को न्याय प्राप्त हो, हमारे समाज में भाईचारा स्थापित हो सके। इसलिए इन महापुरुषों ने अपना अथक संघर्ष करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया। You see, 500 years before, Guru Namdev, Guru Kabir, Guru Ravidas, Guru Nanak Ji, Guru Gobind Singh Ji, they also fought for equality. अगर आप उससे भी पहले 500 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नामदेव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। और वो संघर्ष भी समानता के लिए संघर्ष था, मानव गरिमा के लिए संघर्ष था। They wanted to establish the egalitarian society. They came and they went. But still now, last 1,000 years, more than 1,000 years, you and me, still now we are fighting to establish the egalitarian society. तो 500 वर्ष पहले हमारे जो गुरु थे, महापुरुष थे, वो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। आज हम
उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में समानता स्थापित हो, एक समता मूलक समाज की स्थापना हो। Our fight not started today or yesterday or last year. Last 1,000 years from Namdev onwards, we are fighting for the same cause. That cause is for equality. तो ये संघर्ष जो है कोई आज कल परसों या एक साल का नहीं है, ये संघर्ष हजारों सालों से चला आ रहा है। और ये जो संघर्ष है ये समाज में समानता स्थापित करने का संघर्ष। No countries in the world not fighting for like this. They are not fighting for equality. But why still now we are struggling to establish egalitarian society? तो आप अगर दुनिया का अध्ययन करेंगे तो आप इतिहास के पन्नों में ये पाएंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो इतनी लंबी गुलामी सहा हो, इतना लंबा संघर्ष किया हो कि 1000 साल पहले भी वो समता मूलक समाज के लिए संघर्ष कर रहा हो और 1000 साल बाद भी हम वहीं खड़े नजर आते। More than thousands of years our people are suffering. Why they are suffering? तो सवाल ये है कि हमारे लोग हजारों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष क्यों कर रहे हैं? Because of imperialist Brahminism. That is the root cause. That is the root cause of our suffering. तो ये जो हमारा संघर्ष है ये 1000 साल से आज तक इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ साम्राज्यवाद, जो ब्राह्मणवादी साम्राज्यवाद है, वो नहीं चाहता कि इस देश में मानव एक समान रहे। Our gurus and bhagats and our Bahujun leaders, Dravidian leaders, very much feared about the ideology of Brahmanism. तो आप देखेंगे कि हमारे जो गुरु थे, हमारे जो भगत महापुरुष थे, वो हमेशा ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और इससे हमेशा समाज को सावधान करने का काम किया। They fought. Gurus also fought against imperialist Brahmanism. They went. But still now we are fighting against the imperialist Brahmanism. Why you people are not honest? तो 1000 साल 500 साल पहले हमारे जो गुरु हुए वो ये साम्राज्यवादी ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आज भी हम इस साम्राज्यवादी ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष करने के बावजूद भी हम किसी नतीजे पे, किसी समाधान पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप लोग सीरियस लोग नहीं हैं। आप लोग जो है ईमानदारी से महापुरुषों के संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाते। Brahminical forces are having only one idea in their mind. They wanted to keep our people as a slave. That is their only idea. They wanted to maintain the supremacy and wanted the majority people as a slave. तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो एक ही सिद्धांत पे काम करती है कि कैसे ब्राह्मणों का प्रभुत्व बाकी लोगों पे कायम रहे और कैसे देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसको गुलाम बना के रखा जाए। They are having only one agenda, but you people are having lot of agenda and lot of gods also you having, lot of varieties of gods. तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको कैसे गुलाम बना के रखा जाए। लेकिन आपके पास बहुत सारे एजेंडे हैं, आपके पास लाखों भगवान हैं जिसमें आप रोज बिजी रहते हैं। You people are always dying with your gods, own gods.
God is a very big problem for you. तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये जो देवी देवता भगवान है ये बन के रह गए। कोई आपको भगवान का चमत्कार बता दे तो आप उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाए। Your family is not a problem for you. Your own God is a problem for you. तो आपका परिवार आपके लिए समस्या का सबब नहीं है। आपके ये जो 36 करोड़ भगवान देवी देवता हैं ये आपकी मुख्य समस्या का कारण बन गए। That God, your God will never allow to liberate you. Your God will not give a freedom from your slavery system. जिनको आप भगवान माने बैठे हैं वो आपको आपकी इस गुलामी से मुक्त करने नहीं आएंगे। जिनको आप भगवान माने बैठे हैं, जो आप डे टू डे की समस्याओं को जूझ रहे हैं, वो भगवान आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएंगे। In Tamil Nadu, Periyar started movement for rational. He started a movement among the people to think. You start to think what is good and what is bad, what is correct and what is wrong. That movement started by Periyar. And another movement started by Periyar is self-respect. His Periyar's movement agenda is only two. One is self-respect and another one is rational. तो वहाँ तमिलनाडु में करीब 100 साल पहले पेरियार ने आंदोलन चलाया था। उनके आंदोलन के दो भाग थे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया तर्क संगत आंदोलन। आप सोचना शुरू करें, तर्क शुरू करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें। और दूसरा मूवमेंट उन्होंने चलाया आत्मसम्मान आंदोलन, कि आप अपने आप को सम्मान देना सीखें। जब तक आप अपने आप को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा आपको सम्मान। तो इसलिए उनका कहना था पहले तुम खुद को सम्मान देना सीख लो, तब तुम्हें कोई दूसरा सम्मान देगा, तब तुम किसी दूसरे का सम्मान कर पाओगे। इसलिए उन्होंने दो चीजें बताई तमिलनाडु की पूरे समाज को। एक तो आप तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो और दूसरा आप अपना सम्मान करना सीखो। If you pee the urine in the roadside, you ask someone to pour the water in your hand. You are washing your hand. But at the same time, here in North India, our Tamil people are saying that cow belt area, in the urine belt area, now it's called as a urine belt area. In your urine belt area, one side you are washing your hand if you pee the urine. But the another side, you are using the urine to drink or otherwise wash your face. This is happening in the North India, your land, this area. तो जब आप पेशाब करते हैं तो आप हाथ धोते हैं शुद्ध करने के लिए। लेकिन उत्तर भारत में आजकल देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग पेशाब को पी रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। तो दक्षिण भारत के लोग जब यहाँ के लोगों को देखते हैं तो कहते हैं ये गौमूत्र क्षेत्र है। यहाँ लोग जो है, जिसको हम लोग छूना पसंद नहीं करते, उसको ये पीते हैं। तो ये इमेज आज इस उत्तर भारत की बनी है पूरे देश में। You have to start to think what is right and what is wrong. तो चूंकि आप इंसान हैं, आपके पास अपना दिमाग है, इसलिए आपको सोचना चाहिए कि जो चीजें हमें सिखाई जा रही हैं। The ideology of Brahmanism wanted to keep you as a continuous slave. जो ब्राह्मणवाद द्वारा जो लगातार हमें सिखाया जाता है अनेक माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया, न्यूज़ हो या डायरेक्ट प्रवचन दे के हो, जो सिखाया जाता है, आपका अपना दिमाग है, आपको सोचना चाहिए कि ये हमारे हित में है
कि हमें और गुलामी के गर्त में ढकेलने का काम हो रहा है। India is the emperor of permanent slaves. ये जो भारत है, ये इस जो गुलामी का स्थायी साम्राज्य बन गया है। It is a permanent. India is the emperor of the permanent slaves. Why our people are slaves last 2000 years? Wherever a people started to revolt against the slavery system, they liberated within 50 years. Within 60 years, 70 years, they liberated and they got freedom. But last 2000 years, our people are fighting to come out of the slavery system. But still now, you and me are fighting to come out of the slavery system. Means why we are not liberated still now? अमेरिका में जो काले लोगों की गुलामी थी, वहाँ पे श्वेत और ब्लैक लोगों का संघर्ष था। जो श्वेत लोग थे वो ब्लैक लोगों को कमतर आंकते थे। तो जो वहाँ के ब्लैक लोग थे, उन्होंने श्वेतों के खिलाफ, इस नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष किया और 50 साल में वो उस नस्ल भेद को समाप्त करने में कामयाब रहे। आपको पता होगा 2009 में बराक ओबामा वहाँ का राष्ट्रपति बना था अमेरिका का। वो काली नस्ल का आदमी था। 50 साल में उन्होंने जंग जीती रंग भेद के खिलाफ। हम पिछले 2000 साल से जाति भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 2000 भी ना मानो तो कम से कम मोटा मोटा 1000 साल तो मान ही लो, जाति भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तब से लेके आज तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी कोई समाधान नजर नहीं आता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप ब्राह्मणवाद के सिद्धांतों पे चल के समझते हैं कि जातवाद का अंत हो जाएगा, तो 1000 साल आपने संघर्ष किया है और 1000 साल आप और संघर्ष कर ले, तब भी आपको इसका अंत नजर नहीं आएगा। Until Brahmanism rule this country, our people will not escape from their slavery system and the slavery life. क्योंकि जब तक यहाँ ब्राह्मणवादी लोगों का शासन है, जब तक यहाँ सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है, ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, तब तक आप अपनी मुक्ति का सपना नहीं देख सकते। Brahmanical people are saying that the slavery system is a permanent one. Nobody has a right to change this slavery system. That's what they are saying, that this system is established by the Sanatana Dharam. Nobody have a right to change the Sanatana Dharam. Sanatana Dharam means it is a permanent one. If the Sanatana Dharam is rule this country, you will not escape from this slavery system. Our people will continuously fight for the self-respect and dignity until this Sanathanam rule this country. ये जो जाति ऊंच नीच की व्यवस्था है, ब्राह्मण इसको कहते हैं, ये सनातन धर्म है, ये सनातन संस्कृति है। इसको भगवान ने बनाया है, ये बदली नहीं जा सकती। तो जब तक ब्राह्मण यहाँ पे सत्ता में है और जब तक आप इस तथाकथित सनातन धर्म का हिस्सा हैं, तो अब चूंकि वो तो भगवान की बना, ये बदली नहीं जा सकती। So, who had given a Sanatana Dharam? Samvidhan had given by Baba Saheb Ambedkar. You people are saying that. Sanathanam is saying that guaranteed that equality, liberty, fraternity, justice, republic, democracy, sovereignty, socialist, everything
our constitution granted to us. But Sanatana had given by the God. It is not a changeable one. Brahminical forces are saying whether India is ruling by the Sanatana Dharam or Indian constitution. One side constitution is saying about equality, but Sanathanam is not permitting to give a equality to us. But you people are hanging with, you people are supporter to the Sanatana Dharam. एक तरफ आप कहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया। उस संविधान में सबके लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता सब कुछ है। दूसरी तरफ सनातन धर्म है, सनातन नियम है जो लोगों को ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे डिवाइड करता है। ये पहले दर्जे का सनातनी ब्राह्मण, दूसरे दर्जे का सनातनी क्षत्रिय, तीसरे दर्जे का सनातनी बनिया, चौथे दर्जे का सनातनी शूद्र, पांचवें दर्जे का सनातनी अति शूद्र। और इस ऊंच नीच की व्यवस्था को ब्राह्मण कहते हैं। ये गॉड मेड है, ये भगवान का बनाया हुआ विधान है। तो आप देखिए कि एक तरफ इस देश में संविधान है और दूसरी तरफ सनातन विधान है। आज इस देश में कौन शक्तिशाली है? जब आप रोज अत्याचार सहते हो, रोज असमानता सहते हो, रोज आपके समाज की जात के कारण हत्या होती है, तो फिर यहां तो आज भी सनातन धर्म ही रूल कर रहा है। संविधान तो बस दिखाने के लिए बना हुआ है। संविधान का राज तो है ही नहीं, यहां तो मनुराज है, जिसको ये कहते हैं सनातन राज या राम राज कह देते हैं। तो जब तक ये सनातन धर्म रहेगा तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। You people are SC/ST people, are highest population of SC/ST population is Madhya Pradesh. I think more than 45% of SC/ST population is here. But what you made? You made a Sanatana Dharam to rule this Madhya Pradesh. But one side, Samvidhan Bachao Andolan, you people are running. Samvidhan Bachao Andolan, Samvidhan Jai Bhim, Jai Bhim. One side is Samvidhan Bachao Andolan, and another side, you made your leader and you made your king. Yeah, you only made your king to rule on the basis of the Sanatana Dharam. Who is the culprit? एक तरफ आप संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान विरोधियों को, सनातनियों को जिताते हैं। आपको पता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट में से सारी की सारी भाजपा जीत गई। आप मध्य प्रदेश के लोगों ने ही जिताया ना। एक तरफ आप संविधान बचाने का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ संविधान विरोधी सनातनियों को जिताते हैं। तो सवाल ये है कि गुनहगार कौन है? Who is the culprit? You tell me. आप बताइए गुनहगार कौन है? You are the culprit. तो आप खुद मान रहे हैं कि गुनहगार आप हैं। Because you people are 45%. 30% is enough to make a government. But you people are 45%. आप अगर SC/ST की आबादी देखी जाए तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 45% आबादी है आपकी। आप यहाँ पे डिसाइडिंग पावर में है, जिसको आप चाह लें उसकी सरकार बनेगी। 45% छोड़ दीजिए, आजकल 33-35% में बहुमत में आ जाती है सरकार।
तो आप 45% हो के भी अगर अपनी बेहतरी के लिए सरकार नहीं चुन पा रहे हैं, अपने विरोधियों की सरकार चुन के दे रहे हैं, तो उसका जो ये दुर्दशा है समाज की, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। So you have to be very serious about our people's life and especially upcoming generation and next generation also. You have to think about our upcoming generation. तो हमारी आपसे अपील है, यहाँ 3 जनरेशन के लोग बैठे हैं, दाऊद हैं, मुश्किल से 15-20 साल का जीवन है उनका, फिर आप मध्य उम्र के लोग हैं, वो अभी नई जनरेशन बैठी है, उसके सामने एक पहाड़ जैसा जीवन है। तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब आप अपने विषय में सोचेंगे तभी आप समस्याओं का समाधान तलाश पाएंगे। This movement not started by us. Bahujan Dravida Party is not started by me. But this mission, its mission started from the Namdev ji, Guru Namdev ji. Still now we are carrying that his mission. When we will fulfill Guru Namdev's mission, Kabir's mission, Ravidas mission, Begumpura mission, when we will fulfill. तो आज जो मूवमेंट हम चला रहे हैं बहुजन द्रविड़ पार्टी के माध्यम से, ये कोई हमारा शुरू किया मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट शुरू किया था गुरु नामदेव ने, गुरु रविदास ने, गुरु कबीर ने, गुरु नानक ने। ये 500-600 साल पहले से चला आ रहा मूवमेंट है। आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा कब होगा। ये जो मिशन है, जो सपना है, बेगमपुरा का सपना, आप लोग रविदास को जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? उनका सपना भी जानते होंगे। क्या था उनका सपना? उनका सपना था बेगमपुरा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उसको उन्होंने कहा बेगमपुरा। एक ऐसा स्टेट मैं चाहता हूं जहां कोई धार्मिक आतंक ना हो, कोई अशिक्षा ना हो, कोई जातीय भेदभाव ना हो, कोई टैक्स ना हो, कोई ऊंच नीच का माहौल ना हो, सब सुखी रहे। उसको उन्होंने, ऐसे राज्य को उन्होंने कहा बेगमपुरा, यानी दुख रहित स्टेट। ये सपना आज से 550-600 साल पहले रविदास ने देखा, उसको गुरु नानक ने आगे बढ़ाया। जो हमारे सिख गुरु हुए, उन्होंने उस सपने को आगे बढ़ाया। गुरु ग्रंथ साहिब में वो सपना दर्ज है आज भी। ये जो सपना है गुरुओं का, आज सवाल यह कि ये पूरा कब होगा। We are all Mool Nivasi. We are the owner of this land. It is our land. It is our soil. Forest and jungles are ours. But who is holding the jungle and forest and our soil? We people are majority. Wherever we go, from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam, our people are there. But who is ruling this country? In democracy, majority only rule this country. But we people are majority. But who is ruling? The microscope community is ruling. Who is the responsible? We people giving a power to them to suppress us. तो हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से
गुजरात, कहीं भी चले जाइए, हमारी संख्या बहुमत में है। हम बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज है। लेकिन आज भी इस देश में मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में सत्ता है, और वो सत्ता वो अपने दम पे नहीं ला पा रहे। हम उनको सत्ता चुन के दे रहे हैं, और उसी सत्ता का इस्तेमाल करके वो हमें गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? इस लंबी गुलामी का जिम्मेदार कौन है? After we got a forgery independence, fake independence, these Brahminical forces promoted a lot of chamchas among our communities. तो जब जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, इस तथाकथित स्वतंत्रता के बाद इस देश में ब्राह्मण राज कायम हो गया। आप देखेंगे स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों के टाइम में आपको शिक्षा का अधिकार मिला, आपको वोट का अधिकार मिला, आपके लिए आरक्षण का अधिकार मिला। स्वतंत्रता के बाद क्या मिला? जितने अधिकार आपको आज मिल रहे हैं वो सब स्वतंत्रता के पहले मिल चुके अधिकार हैं। 1935 में शिक्षा का अधिकार मिल गया तो फूले, अंबेडकर, साहू जैसे लोग पढ़ पाए। नहीं, शिक्षा का अधिकार ना होता तो अंबेडकर कैसे पढ़ते? अंबेडकर के बाप कैसे पढ़ते? सयाजीराव गायकवाड़ पढ़ के वो फौज में थे। उनसे पहले फूले पढ़े तो अंग्रेजों के टाइम में शिक्षा का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, आरक्षण 1935-36 में मिल गया। स्वतंत्रता के बाद क्या मिला? स्वतंत्रता के बाद मिला ब्राह्मणों की गुलामी। काले गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज सत्ता में आ गए, और उनका शोषण दमन आज हमारे समाज में जारी है, आज भी जारी है। Today onwards, I want to call the chamchas as a saloon slaves. तो ये जो ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित हुई स्वतंत्रता के नाम पे, उस सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए इन्होंने हमारे समाज में चमचे पैदा करना शुरू किए कि चमचों के माध्यम से हम इनके ऊपर राज करेंगे। आज मैं उस चमचाबाद को एक नया नाम दे रहा हूं। Because you see, around 132 MPs are sitting in the parliament. You people are saying that Baba Saheb Ambedkar had given a political power to our people. Around 130 MPs are sitting in the parliament. A single person is not ready to talk about your problem in the parliament. They are all saloon slaves. You know saloon? You know saloon, I think so. सैलून जहां एक नाई जो है आपका चेहरा मोहरा सुंदर बनाता है, तो आपके बाल काटता है, उसको सैलून बोलते हैं। उस जगह को, नाई की दुकान को सैलून बोलते हैं। तो आज हमारे जो एमपी एमएलए हैं उनकी हालत जो है सैलून स्लेब की तरह हो गई, गुलाम है। वो चंद टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियों को सजाते हैं, संवारते हैं, उनको निखारते हैं। इसका नतीजा आप देखिए कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के करीब 131 सांसद हैं। पूरे देश में करीब 1200 से ऊपर विधायक हैं रिजर्व सीटों में। लेकिन रोज अन्याय अत्याचार हमारे समाज के साथ होते हैं। कोई एक सांसद आपको नहीं दिखेगा कि समाज के लिए खड़ा नजर आए। कोई एक विधायक नहीं दिखेगा जो समाज के लिए लड़ता नजर आए। That saloon slaves are satisfying the Brahminical parties like a BJP, Congress and Aam Aadmi Party. They are not ready to satisfy you and your people. तो ये जो सैलून के गुलाम हैं, सैलून स्लेव्स हैं,
ये आपके प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, आपके भविष्य को सुंदर बनाने का काम नहीं करते। ये कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी जैसी ब्राह्मणवादी, मनुवादी पार्टियों को सजाने, संवारने और उनको स्टेब्लिश करने में सहयोग करते। You people are seeing like they are all like a master, but they are not like a master. They are not a masters. They are all, because saloon, when you go to the saloon, that person also behave like a master. Yes, he is a master, but his job is to beautify the person. Now the same job our Dalit leaders are beautifying the Congress party, beautifying the Aam Aadmi party, they are beautifying the BJP party. They are not ready to work for your development. They are not ready to work for your growth. They are not to think about our children's education. They are all went behind the Manuwadi party, and they are like a gulam to the Congress, BJP and Communist party. तो जिन सांसद विधायकों को आप बड़ा मास्टर समझते हैं, ये बहुत हमारे समाज का मास्टर आदमी है, लीडर आदमी है, दरअसल ये कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी जैसी ब्राह्मण पार्टियों के गुलाम हैं। ये आपकी उन्नति के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे। ये कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों की उन्नति के लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो आपके प्रति कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। They are all kuch nahi. Those people are nahi. They are all individuals. You see, BJP, Congress, MLA, MPs, they are alone. Purposefully BJP and Congress, they are promoting, because they are working like a slave. They are purposefully, they are making as a, they are an individual, but they are making as a master, like a master. They don't have any power. तो ये जो हमारे समाज के तथाकथित ये सांसद विधायक हैं, इनकी उन पार्टियों में रत्ती भर की औकात नहीं होती। लेकिन जब आपके बीच में उनको भेजते हैं तो ऐसे उनको सजा सवार के भेजते हैं कि बहुत बड़े मास्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, ताकि आप उनके माध्यम से आपके वोटों को कांग्रेस, भाजपा में डलाया जा सके। They are all betrayer. They are all gadar. We have to somewhat get away from those people. You have to be aware. You have to be very aware about those people. You don't allow those people to come to your village or your district. तो ये जो ये तथाकथित नेता हैं, सांसद विधायक है, जो रिजर्व सीटों से जीत के वहां बैठे हुए हैं, ये समाज के गद्दार लोग, जो समाज के साथ धोखा करते आ रहे हैं। इसलिए हमें इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। यहां तक कि इन्हें अपने गांवों में, अपने जिले में घुसने की इजाजत भी नहीं देना चाहिए। Today we are meditating about where is the solution lies. चूंकि आज के जो कार्यक्रम है उसका मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे समाज के साथ ये जाति उत्पीड़न होता है, जो धार्मिक आतंक में आप जी रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मुक्ति का समाधान क्या है, ये आज का मुख्य टॉपिक है। Wherever we go, our people are very much interested to talk about the problems, but they are not ready to talk about the solution. तो हमारे लोग जहां भी जाते हैं, जहां भी उठते बैठते हैं, समस्याओं के बारे में खूब बात करते हैं। आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया, कल वहाँ हो गया, परसों वहाँ हो गया। लेकिन ये समस्याएं खत्म कैसे होंगी, इसका समाधान क्या है, उस पर बात नहीं करते। It is very easy to talk about the problem, but when we ask where is the solution lies, nobody is ready to give the solution to our people. तो समस्याओं पे बात करना बहुत आसान है, मुश्किल काम है समाधान की बात करना।
कि कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या है, उस पे बात करना कठिन काम है। Because Kanshiram was always thinking about solution. तो आप देखेंगे कि कांसीराम साहब का जो पूरा मूवमेंट है, उनका पूरा जीवन है, उन्होंने समस्याओं पे बात नहीं करी, वो सिर्फ समाधान पे बात करते थे कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है। So most of our people are associated with the social movement. If you want a shortcut, if you want to solve your short-term problem, you may associate with the social movement, social action. But when we want the long-term solution, you have to participate with the politics. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़े होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़े समय के लिए समाधान चाहिए तो आप सामाजिक संगठनों से या सामाजिक कार्रवाई करके थोड़े समय के लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए समाधान चाहिए तो आपको राजनीतिक एक्टिविटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से आप लंबे समय के लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Political action gives a long-term solution for us. But when you choose the cultural action, the permanent, that is the permanent solution. We have to escape from the Brahminical ideology. We have to escape from this Hindu social order. That is the permanent solution for us. मैं इस चीज को थोड़ा और सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे सर ने अभी बताया, मान्यवर कांसीराम साहब ने भी इस बात को कहा है। उन्होंने द चमचा एज किताब लिखी, अपने जीवन में एक ही किताब लिखी, उसमें उन्होंने समाधान बताया। अगर आपको तात्कालिक समाधान चाहिए, तात्कालिक समाधान का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके समाज के किसी व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी, आप धरने पे बैठ गए, दबाव बना दिया, शासन प्रशासन उसको दबाव को सुन के और उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया। ये होता है तात्कालिक समाधान। एक होता है दीर्घकालिक समाधान। दीर्घकालिक समाधान या दीर्घकालिक एक्शन का मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल। वो होता है राजनीतिक एक्शन से। मान लीजिए आपके 5 साल के लिए आपके पास, आपके समाज के किसी नेता के पास सत्ता आ गई, तो जब तक वो सत्ता में है, पावर में है, तब तक आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होंगे या कम से कम होंगे। लेकिन ये अंतिम समाधान तब भी नहीं है। अंतिम समाधान है कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आप चमार रहेंगे। हिंदू धर्म में आप जाति नहीं कहते कि जाति कभी नहीं जाती। जब तक आप हिंदू हैं तब तक आप चमार हैं, और जब तक आप चमार हैं तो ब्राह्मणवाद के हिसाब से चमारों के साथ जो किया जाता है, जो उनका धर्म सम्मत व्यवहार है, वो आपके साथ होता रहेगा। तो इसलिए अगर परमानेंट सलूशन चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए, तो ये जो जाति की जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जिसको आजकल ये हिंदू धर्म कहते हैं, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और यही शिक्षा जो है रविदास ने भी दी है, कबीर ने भी दी है, नानक ने भी उसका समाधान बताया। उन्होंने इसीलिए तो अलग एक धर्म बनाया, सिख धर्म। बाबा साहब ने भी इसका रास्ता यही बताया कि भाई धर्म परिवर्तन करो,
इस सिस्टम में रहो ही नहीं। तो ये स्थायी समाधान है। तो ये आपको तय करना, आपको शॉर्टकट समाधान चाहिए तो वो सामाजिक कार्रवाई के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल का समाधान चाहिए तो राजनीतिक कार्रवाई से आप उसको पूरा कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन आपको अगर स्थायी समाधान चाहिए तो आपको ये जो शोषण की हिंदू संस्कृति है, ब्राह्मणिकल संस्कृति है, इससे आपको दूर हटना होगा। कोई ऐसी संस्कृति पकड़नी होगी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करती हो, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करती हो। You see 2 states in this country, Tamil Nadu and Punjab. Punjab people are not living like us. Complete permanent, they went for permanent solution. Cultural change. They are living a happy life there. And you see the Tamil Nadu, that also cultural change. Cultural change means they are completely against the Brahminical ideology. They started, Periyar started the movement, atheist movement. So because of that cultural movement, the Tamil Nadu also somewhat safe, and people also living very happy life because that is a different cultural transformation happened in Tamil Nadu, and there Punjab also cultural transformation happened. Entirely in whole India, the 2 states are entirely different from other states because they went for the permanent solution. दो प्रदेश इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने ये जो ब्राह्मणवादी संस्कृति का समाधान खोजा है। एक है पंजाब, एक है तमिलनाडु। पंजाब में 1599 में गुरु नानक ने ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ अभियान छेड़ा और उन्होंने लोगों को एक अलग रास्ता बताया, सिखी का रास्ता। बाद में 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब, वहाँ एक जगह है, वहाँ उन्होंने पूरे देश की सभा बुलाई और लोगों को कहा कि ये जो जातिवाद की संस्कृति है इसको छोड़ दो। और उन्होंने नारा दिया, मानस की जात सबे एक है पहचान वो, मनुष्य की जात सिर्फ एक है। तो आपको सबके साथ समान व्यवहार करना है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में पंजाब में करके दिखाया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक मानवतावाद का बोलबाला हुआ। दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पेरियार ने ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ इतना जोरदार मूवमेंट चलाया कि आज वहाँ जहाँ कभी 14% ब्राह्मण होता था, वहाँ आज 1% ब्राह्मण नहीं, वो सब छोड़ के तमिलनाडु चले आए इधर नॉर्थ इंडिया। वहाँ कोई ब्राह्मणवाद की हिंदू संस्कृति की बात करे तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, उसको खदेड़ के भगा देते। अभी पिछले हफ्ते आरएसएस के जो लोग थे उनकी खूब पिटाई हुई, कपड़े उतार उतार के धोया लोगों। आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। वहाँ की जनसंख्या का कम से कम 39%, 35 से 39% शेड्यूल कास्ट। लेकिन आप जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसको उठा के आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट के साथ कहाँ होता है पूरे देश में। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पे राजस्थान आएगा, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस तरीके से सारे इधर के ही स्टेट हैं। पंजाब 20वें नंबर पे भी नहीं आएगा। आबादी हमारे लोगों की सबसे ज़्यादा, लेकिन उत्पीड़न सबसे कम, 0 लगभग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस उत्पीड़न की संस्कृति को ही छोड़ दिया। वो गुरुओं की समता मूलक संस्कृति पे चले गए।
उन्होंने जातिवाद को मानना छोड़ दिया। और दूसरी जो मुख्य चीज है, गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको जो मुख्य चीज थी, एक जमाना था जब लोगों को, जैसे हमारे लोग, जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे आप पगड़ी बांध के रखे हैं, जब हमारे लोग ब्राह्मण ठाकुरों के सामने जाते थे तो उनको पग बांधने की इजाजत नहीं थी। वो पगड़ी जो है तो यहाँ दबा के ऐसे झुक के जाते थे। उन्होंने लोगों को कहा कि आप दस्तार सजाओ, ये आपके शान का प्रतीक है। और जब उन्होंने मानस की जात सब एक है पहचानवों का आह्वान किया लोगों को, तो उन्होंने बोला आज के बाद कोई अपने नाम के पीछे जाति नहीं लगाएगा। जो पुरुष हैं वो अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे और जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के साथ कौर लगाएंगे। तो वहाँ उन्होंने जो जाति थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और तीसरी चीज़ जो मुख्य थी, उन्होंने जो हमारा समाज जिसका हौसला टूटा था उसको उन्होंने कृपान दी, तलवार, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी दी कि भाई ये आपकी मान स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से पंजाब में 350 साल पहले, 400 साल पहले कल्चरल चेंज लोगों ने किया, सांस्कृतिक परिवर्तन लोगों ने किया। हिंदू संस्कृति को छोड़ के उन्होंने मानवतावादी समतावादी संस्कृति अपनाई। तो आज वहाँ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तमिलनाडु के लोगों ने कल्चरल रिवोल्ट किया पेरियार के नेतृत्व में, तो वहाँ ब्राह्मणवाद का कोई ज़्यादा बोलवाला नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमें इन दो स्टेटों से उदाहरण लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। और अगर हमें ये रोज रोज की अपमान से, जाति अपमान से मुक्त होना है तो परमानेंटली सलूशन यही है कि हमें कल्चरल चेंज करना पड़ेगा। Finally, I appeal to you, we have to struggle for the political change. So Baba Saheb Ambedkar told that our master key is a political power. If we have the political power in our hand, we can change everything. So we have to struggle for the political change also. In meantime, simultaneously, we will go for the permanent solution, cultural change also. To both political and cultural, both Miri Piri have to go 50-50. Then very soon, Guru Ravidas mission of Begumpura Khalsa Raj will flourish in this country. In this, I conclude my speech. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अंत में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी आप तात्कालिक समाधान के लिए तो आप सब संघर्ष कर रहे हैं, कहीं कुछ होता है तो आप एकजुट होते हैं, आवाज उठाते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को न्याय मिले। लेकिन इतने बस से काम नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म सलूशन, दीर्घकालिक समाधान के लिए काम पर करना पड़ेगा और परमानेंट सलूशन के लिए भी साथ साथ काम करना पड़ेगा। आपको राजनीतिक समाधान के लिए भी काम करना पड़ेगा और सांस्कृतिक समाधान के लिए भी काम करना पड़ेगा। इसको गुरुओं ने कहा है मीरी पीरी। तो अगर आप दोनों स्तर से काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम अपने गुरुओं का जो सपना है, जो गुरु रविदास का बेगमपुरा खालसा राज का सपना है, उसको पूरा करने में सफल हो सकते हैं। और अगर हम उस सपने को साकार करने में सफल होते हैं तो ही हमारे समाज के साथ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।